Good morning, all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay. So today what we are going to learn? What we are going to learn? Don't know what we are going to learn today. Okay, tell me what we have learned last class. What we have learned in the last class? Huh? Darshan? What we learned in the last class, beta? Darshan, I'm talking to you. Yes, ma'am. What we learned in the last class? Ma'am, we have learned the 3 types of periodic table prepared by various scientists. Yes, ma'am, and the limitations of that Okay. medieval and that all. Darshan, can you tell me the merits of Mendeleev periodic table? Merits. या मेरिट्स मतलब एडवांटेज उसका फायदा क्या है? Yes, ma'am. Tell me. Ma'am, advantages na? Yes. Ma'am, advantages can be like Don't remember? no, ma'am. I think that he has left a blank space which helps the scientist to discover the new element. Okay, correct. एक का boron, एक का aluminium. Okay. And another one? Second can be between hydrogen and helium. The 3 he placed cobalt before nickel. What? Between hydrogen and helium, he placed? He placed 3. He placed cobalt before nickel. Ma'am, this was a disadvantage now. Yeah. This was, yes. I asked you about merits. Only merits. And okay, no issues. I will ask somebody else. Millie? Millie? No, no response. Millie? No. Kushi? Kushi? Yes, ma'am. Can you tell me another advantage of merit of Mendeleev periodic table? Darshan told one. Do you remember? No. Okay. No issues. But pay attention. ma'am, position of noble gases. Position of noble gases. Yes, noble gases can be placed in Mendeleev periodic table Yes, when it was zero group. discovered. Yes, as zero group, and it is called as modified Mendeleev periodic table. Okay, Modified. what else? Correction of atomic masses. हाँ, of किसका correction किया था? Ma'am, वो atomic masses or atomic certain weight of elements. Beryllium was corrected from 13.5 to Beryllium 9. corrected from. Yes, good. Yes. Okay. Gold was also corrected. Yes. Okay. And similarly, platinum also. Yeah. So what you have to learn, what main focus here it is that you have to remember the Mendeleev periodic law. Mendeleev periodic law मैंने पूछा नहीं, लेकिन उसका Mendeleev periodic law याद रखना कि periodic properties are the function of atomic weight. Okay. So Mendeleev periodic law. One more are there, is there? Yes. क्या means merit you want to tell?
Yes, ma'am. हाँ, tell. Elements with similar properties were grouped together. So that will be demerit, na? Elements with dissimilar property, if you are telling. Similar properties. Similar properties. Okay, correct. Okay. So what it is? Yes. मैं last class में ना हाँ. I was asking that the statement which has given that the physical and chemical property depends upon mass. तो मैम ये तो करेक्ट हुआ ना? कैसे मास के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन के ऊपर, वो रिएक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मास का रिएक्शन से क्या लेना देना बताओ? मैम जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी मास के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन हम पीरियोडिक टेबल उनकी मेनली पीरियोडिक टेबल क्यों बना? क्योंकि उसकी केमिकल रिएक्टिविटी स्टडी करनी थी, उसके लिए बना। केमिकल रिएक्टिविटी स्टडी करने के लिए अब बताओगे, अब उसका साइज छोटा है, मोटा है, बड़ा है, बोलने से उसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में कुछ पता चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के दौरान ना प्रोटॉन इन्वॉल्व होता है ना न्यूट्रॉन। मास किसके ऊपर डिपेंड होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों ही केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि वो केमिकल रिएक्टिविटी से उनका लेना देना नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन किसके कारण होता है? केमिकल रिएक्शन किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। और इलेक्ट्रॉन्स इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? एटॉमिक नंबर के ऊपर, है कि नहीं? Isn't that विरम? लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक तरीके से प्रोटॉन के डिपेंडेंट भी हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इक्वल है। वो हमारा पता लगाने का तरीका है कि एक एटम न्यूट्रल है तो डिपेंडेंट नहीं है उसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो हम पता कैलकुलेट करने का तरीका है। हम मान के चलते हैं कि एक एटम न्यूट्रल होता है तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें प्रोटॉन इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें किसका एक्सचेंज होता है? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे सेमी मेटल बोलो, आप किसी का भी बोलो, कंडक्टर बोलो, सेमी कंडक्टर बोलो, सब में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नॉन मेटल है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो कंडक्टर है, नहीं फ्लो करेगा तो नॉन कंडक्टर है। ये सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी और इलेक्ट्रॉन पता लगाने का तरीका क्या होता है? नंबर, एटॉमिक नंबर, ना कि मास। इसीलिए बोला गया कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन, यानी कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात की गई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं गई है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होता है वो देखेंगे। जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है वो फंक्शन होगा किसका? एटॉमिक नंबर का। और पीरियोडिक प्रॉपर्टी में मेनली क्या कवर होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। और वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? नंबर के ऊपर, ना इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर। नंबर से हमारा रिलेटेड है क्या? इलेक्ट्रॉन। अगर आप बोल दो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी मास के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का कोई काम नहीं है किसी भी केमिकल रिएक्शन, इसीलिए। ओके, क्लियर है? ओके मैम, यस मैम। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न हियर टुडे द अनदर न्यूलैंड का लिमिटेशन बताओ। न्यूलैंड का लिमिटेशन तो बहुत सारा था। न्यूलैंड का पहला लिमिटेशन क्या था कि उसने एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट प्लेस कर दिया था, ये देखो, कोबाल्ट और निकल, ठीक है। दूसरा स्लॉयर क्या किया? उस न्यूलैंड का लॉ क्या बोला था? मेटल और नॉन मेटल एक साथ था। डिसिमिलर, देखो सिमिलर एलिमेंट्स को दूर दूर भेज दिया। सिमिलर एलिमेंट्स देखो, आयरन, कोबाल्ट और निकल सिमिलर एलिमेंट है ना। आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखोगे ट्रांजिशन मेटल है, ये सिमिलर एलिमेंट है, लेकिन ये क्या है? अलग अलग ग्रुप में चले गए। दूसरी क्या चीज है? डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया। डिसिमिलर मतलब जो कि प्रॉपर्टीज में बहुत हद तक अलग है। तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जिनको हम लोग अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। वो किसके साथ प्लेस कर दिया गया? नोबल मेटल्स के साथ, मतलब जो लेस रिएक्टिव मेटल है जैसे कि कॉपर, उसके साथ प्लेस कर दिया गया। इज इट क्लियर? ओके, दो ड्रॉबैक्स क्लियर है। दूसरी बात, ये जो लॉ है ये सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं, ठीक है, क्लियर है। एक और इसका ड्रॉबैक है जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है कि न्यूलैंड ने एक और सबसे बड़ी गलती क्या बोली थी कि ओनली 56 एलिमेंट्स एक्सिस्टेड इन द नेचर। न्यूलैंड ने क्या बोला? सिर्फ 56 एलिमेंट्स है और कोई एलिमेंट्स है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, आज हम कितना पढ़ते हैं? 180 एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं। तो ये उसका और भी एक बड़ा ड्रॉबैक है,
ठीक है, क्लियर है? ड्रॉबैक्स मैम जैसे हाँ जैसे और एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो 118 के 18 बाद जो वाली लाइन है उसमें हाँ प्लेस होगा अच्छा, कि सबसे हाँ नीचे एक और जब 103 है वहां? हाँ आप लोग लास्ट ईयर सुने होंगे 3 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं करके, एक जापान का एक साइंटिस्ट का, यस मैम। जापानी होनियम, वो तो अभी तक आपने देखना है पुराना जब जब 2015 14 13 का अगर पीरियोडिक टेबल्स में अगर जाएंगे ना तब वहां पे UUN UUB UUT लिखा रहता है पीरियोडिक टेबल के नीचे। रुको दिखा रही हूँ, अभी तो लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी तो पूरा डिस्कवर हो गया इसके कारण है बहुत सारे। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये UUT दिख रहा है यस मैम। ये UUP है ना, ये यस UUS, मैम। ये मतलब कि साइंटिस्ट को पता है कि ये एलिमेंट्स है लेकिन अभी तक से डिस्कवर नहीं हुए, उनको एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज डिस्कवर नहीं हुई, तो उनके एक नंबर जैसे हम रोमन न्यूमरल्स में 1 2 3 बोलते हैं ना, वैसे उन्होंने लोग साइंटिफिक टर्म्स में नाम दिए। जैसे यू का मतलब उन माने 1, फिर से 1 है तो उन, 3 के लिए ट्राई, तो इसका नाम है उन ट्रियम, उन्होंने नाम क्या दिया उन ट्रियम। जैसे ट्रियम। हाँ अब यहाँ पे देखो UUS उन सेप्टियम है ना, ये क्या है उन्होंने बोला है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अब एलिमेंट्स डिस्कवर हो आ सकते हैं, तो अब एक एक साइंटिस्ट डिस्कवर करते जा रहे हैं और उसका नाम पढ़ते जा रहा है। जैसे इन्होंने 103 को है ना उन ट्रियम था, इसका नाम क्या था उन ट्रियम, लेकिन बाद में लॉरेंशियम डिस्कवर हो गया, इसका नाम था उन टेट्रियम, तो इसका क्या हो गया रदरफोर्डियम। मतलब एक एक करके एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए तो उनका नाम उन ट्रियम से चेंज होके जो एग्जैक्ट नाम है जो साइंटिस्ट लोगों ने दिया उसके बेसिस पे हो गया। अब देखना अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा मैम मतलब अभी जो लेकिन ये अनुमान कैसे लगाते हैं कि मतलब ये प्रोबेबिलिटी इनको पता कैसे चलती है कि और एग्जिस्ट होगा? तो उनको ये जब एक एलिमेंट को स्टडी करते हैं तो उनको रिएक्शंस होते हैं, तो रिएक्शन के दौरान उनको एक कंक्लूजन कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन मिलता होगा कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। और साइंटिस्ट जब करते हैं स्टडी तो उन लोग अब जैसे अब एक एलिमेंट को खोजोगे तो दूसरा एलिमेंट भी धीरे धीरे उनको खोजने में, अब उनका अब आप वही नहीं बोल सकते कि कैसे खोजेगा, अब एक साइंटिस्ट का दिमाग कैसा रहता है, नहीं है तो क्या है तो क्यों है, ऐसा करके उन लोग खोजना शुरू करते हैं। अब उनको धीरे धीरे ही चल जाता है, अब एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उनको हम लोग रिसर्च करना चालू कि अब 115 वाला भी कोई एलिमेंट है क्या, तो उनको देखना पड़ेगा कि एटम ऐसा कोई एटम ढूंढना पड़ेगा कि एटम ऐसा जिसके अंदर इतने प्रोटॉन और इतने न्यूट्रॉन वाला कोई एलिमेंट है क्या, तो जब उनको एग्जिस्टेंस का मैम पता चल ऐसा गया। हो सकता है कि 113 डिस्कवर नहीं हुआ है और 1118 डिस्कवर ही हो गया? हाँ हुआ है, तो ये भी एक मतलब वो दे सकते हैं ना साइन की ये उसके आप पहले का देख भी रहे हो कुछ ना, सिमिलर। ये 103 से लेके 1117 18 तक आप जो देख रहे हो इन सब का नाम पहले ये उन बियम उन ट्रियम था, छोड़ दिया गया था ऐसा करके। 103 से ये जो दिख रहा है ना नीचे से लेके यहाँ से पूरा छोड़ दिया गया था। यस लेकिन मैम। आप इनको आप धीरे धीरे एक एक साइंटिस्ट आ रहे हैं अपने हिसाब से डिस्कवर करते जा रहे हैं, धीरे धीरे टाइम लग रहा है, तो जब जैसे जैसे डिस्कवर हो रहा है उसका उसका वैसे वैसे नाम होते जा रहा है। ठीक है मैम मीन्स मास होता है वो मीन्स किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है? डेंसिटी वाइज? हाँ, जो मास रहता है ना एटॉमिक मास, मास आप जैसे थियोरेटिकल कैलकुलेशन की बात करते, मास हम जो कभी पढ़ते हैं ना कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो थियोरेटिकल कैलकुलेशन पेपर वर्क कि पेपर में हमको बताना पड़ता है कि ये एलिमेंट है इसमें इतना प्रोटॉन होगा या इसका एटॉमिक नंबर ये है, ऐसा कैलकुलेशन की। अदरवाइज साइंटिफिकली एग्जैक्टली हम जो रहता है ये प्रोटॉन, अब साइंटिफिकली हम इसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिस पे नहीं, हम लोग एग्जैक्टली जो वेट करते हैं वो मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट आता है उसके बेसिस पे करते हैं। यस मैम, रिलेटिव C12 का जो पढ़े थे हम वही जो ना? ये कैलकुलेशन हमको पेपर वर्क करना है, अब इतने बड़े साइंटिस्ट काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं, रिसर्च वर्क होता है, तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन वर्क चाहिए। अब ये एलिमेंट किससे रिएक्ट कर रहा है, इसको बैलेंस करो, इसका इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, तो थियोरेटिकल वर्क के लिए हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और जो एग्जैक्ट मेजरमेंट का तरीका है वो है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है मैम ये इंस्ट्रूमेंट सब IUPAC का वो रहते हैं ना गाइडलाइन जिसके में डिस्कवर होता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या फॉर्मूला? हाँ क्या क्या हेलो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला हाँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या फॉर्मूला बेटा, आप लोग को जैसे अभी, कैलकुलेट करने का। अरे वो तुम लोग पढ़े हो ना लोअर क्लास में, वो हायर लेवल पे भी वही चलता है
कि मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, पढ़े ना लोअर क्लास में 9th में। Yes, ma'am. तो वही है, तो वो उसी तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है मास नंबर पता है तो आप प्रोटॉन पता है तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन और मास नंबर पता है तो आप प्रोटॉन निकाल सकते हो। ये क्या थियोरेटिकल तरीका, ये है अपना कैलकुलेशन, सिंपल सा कैलकुलेशन जो आप बड़े लेवल पे भी जाओगे यही होता है। ठीक है, अब आ जाए मेन टॉपिक के ऊपर। Yes, ma'am. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर करने वाले जो थे मेन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दो साइंटिस्ट है, एक ने लॉ दिया, दूसरे ने उस लॉ को यूज करके टेबल बनाया। तो पीरियोडिक लॉ देने वाले थे मोस्टली, और इस मोस्टली के जो पीरियोडिक लॉ है उसको यूज करके नील बोर, आपने जो नील बोर से एटॉमिक मॉडल पढ़ा ना, वही नील बोर, उन्होंने ही उस लॉ को यूज करके पीरियोडिक टेबल बनाया। ठीक है, तो मोस्टली ने क्या बोला था, मेंडलीव से क्या अलग था, मेंडलीव से अलग ये था कि मेंडलीव ने बोला कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, whereas Moseley said that periodic properties are the function of atomic number। क्यों? क्योंकि मैंने अभी वही ना जो मैं बोल रहा था। हाँ, वही लॉ लगाया। उन्होंने क्या लगाया कि अरे भाई जब केमिकल प्रॉपर्टीज में जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो रहा तो वेट के ऊपर क्यों डिपेंडेंट होगा, वो तो डिपेंडेंट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का तरीका है एटॉमिक नंबर। दैट्स व्हाई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। Periodic properties जो होते हैं are the function of their atomic number. So you can see here it is written the physical and chemical properties of the elements are the periodic property function of their atomic number। यानी atomic number change होगा तो उसकी periodic properties भी change होगी। Next, cause of periodicity। अब periodic properties होता क्या है, अब periodic property क्या होता है आपको बता दे कि वो property जिनको आप periodic table में move करोगे तो एक particular trend निकलेगा। जैसे कि अभी मैं बता दूं, जैसे एक ट्रेंड होता है कि टॉप टू बॉटम हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये ऊपर से नीचे जा रही हूँ मैं, है ना, जैसे कि हाइड्रोजन से लेके फ्रॉन्शियम या फिर बेरिलियम से लेके रेडियम, तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाते तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये क्या है, बढ़ता है, ये क्या पर्टिकुलर ट्रेंड मिल रहा है, लेकिन एक ट्रेंड मिल रहा है। सो व्हेन अ प्रॉपर्टी रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई प्रॉपर्टी खुद को रिपीट करती है एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ पीरियोडिक टेबल, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, पीरियोडिक टेबल। जैसे कि मैंने क्या बोला कि ये क्या है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो यहाँ पे क्या है, ये सारे यानी कि ये क्या है, सारे के सारे मेटालिक हो गए, यानी मेटालिक प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, यानी मेटालिक कैरेक्टर क्या है, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, अब एक और चीज नोटिस करो, लिथियम की वैलेंसी क्या है 1, सोडियम की वैलेंसी क्या है 1, पोटेशियम की वैलेंसी क्या है 1, है ना, इन सब की वैलेंसी क्या है 1, तो वैलेंसी भी खुद को रिपीट कर रहा है, तो वैलेंसी भी क्या हुआ, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, यानी कि द प्रॉपर्टी व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, एनीवन? नो मैम, नो मैम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं सबको पूछ रही हूँ, जनरल 3-4 जन को नहीं पूछ रही हूँ, ओनली 3-4 people I am not asking, I am asking 41 attendance is there, I am asking all the 41, okay, clear? Okay, good. So these are the periodic property। अब इस periodic property किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, एटॉमिक नंबर के ऊपर, ठीक है। That's why he arranged the elements in the increasing order of atomic number, okay, he arranged the elements in the increasing order of atomic number, and this was the arrangement which was done in the modern periodic table। यहाँ पे आप देखो, अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खास बात क्या थी, जैसे मेंडलीव का फीचर्स हमने पढ़ा, वैसे ही इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के भी फीचर्स हमको पढ़ने, ठीक है, क्लियर। अब ये मॉडर्न जैसे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल ग्रुप्स और पीरियड्स में क्लासिफाइड था, वैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स यानी कि ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि पीरियड्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और यहाँ पे कितने ग्रुप है, टोटल 18 ग्रुप है, ओके, और पीरियड्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल 7, ठीक है, क्लियर है। टोटल कितने ग्रुप है, 18, और टोटल कितने पीरियड है, 7। अब इस ग्रुप और पीरियड का क्या काम है, इस ग्रुप से आपको क्या पता चलेगा, ओके, और इस पीरियड से क्या पता चलेगा, देखो जो उसका पीरियड नंबर है वही उसका वैलेंस शेल है।
अगर आप बोल रहे हो कि हाइड्रोजन पीरियड नंबर 1 का यानी उसका वैलेंस शेल क्या है 1। अगर आप बोल रहे हो हाँ लिथियम का पीरियड नंबर 2 है तो यानी उसका वैलेंस शेल क्या है 2। वैलेंस शेल मैंने बताया था, याद होगा तो, आउटर मोस्ट शेल, द इलेक्ट्रॉन व्हिच व्हेन एंटर्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स व्हिचएवर शेल दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में जाएगा वो शेल क्या कहलाएगा, वैलेंस शेल। दैट इन द सेम वे सोडियम कित कौन से पीरियड में आ रहा है, 3rd पीरियड में आ रहा है ना, तो इसका वैलेंस शेल क्या हो गया 3। पोटेशियम 4th में आ रहा है तो इसका वैलेंस शेल क्या है 4। यानी कि एक तरीके से आप ये पता लगा सकते हो कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने शेल हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जा रहा है। तो हाइड्रोजन में 1 ही शेल है, लिथियम में दो शेल है, सोडियम में 3 है, पोटेशियम में 4 है, रुबीडियम में 5 है, सीजियम में 6 है, फ्रॉन्टियम में 7 है। In this way, you can find out the valence shell and the number of shells in any element with the help of period number. Okay? Group number. अब group number से क्या काम है? Group number gives us information about the valence electrons. किसके बारे में information देता है? Valence electron. जैसे हाइड्रोजन है, इसका पर्टिकुलर ट्रिक है, ये आपको मैं कैलकुलेशन में बताऊंगी, ये एक बार टीच कर दूंगी, उसके बाद मैं आपको तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, ओके। तो जैसे ग्रुप 1 2 है ना, जैसे ग्रुप 1 2 के एलिमेंट है, ग्रुप 1 2 के एलिमेंट है तो इनकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी 1 और 2। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है क्योंकि इसका ग्रुप नंबर भी क्या है 1। बेरिलियम का ग्रुप बेरिलियम कौन से ग्रुप नंबर का है 2, तो इन सब इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है सबकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप 13 से लेके 18 में। ग्रुप 13 से लेके 18 में आने के लिए 18 को तो ग्रुप 18 क्या है, नोबल गैसेस है, ये सारे के सारे तो स्टेबल है, इनकी वैलेंसी हमको फाइंड ही नहीं करना है, ये सारे के सारे क्या, इनकी वैलेंसी क्या है 0, तो इसको एक्सक्लूड कर दो। ग्रुप 18 को छोड़ दो। ग्रुप 18 क्या है, नोबल गैसेस जो ऑलरेडी स्टेबल है, इनका ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट है, इनको हमको काउंट ही नहीं करना है वैलेंसी कैलकुलेशन में। तो हम बारी आती है किसकी, यहाँ ग्रुप 13 से लेके 17 तक। ग्रुप 13 से लेके 17 तक अगर आपको वैलेंसी फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप नंबर -10 कर देना है, तो आपको वैलेंसी पता लग जाएगी। देखो वैलेंस ग्रुप नंबर -10 करोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा आपको, वैलेंसी है कि नहीं। तो अभी तो ग्रुप नंबर इसका क्या है 13, 13 - 10 कितना होता है 3, है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 3। और मैं आपको लास्ट ईयर बताया गया होगा कि अगर किसी एलिमेंट के पास 4 3 2 या 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इसकी वैलेंसी भी 3, यानी इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है सबकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, इस ग्रुप की, तो 14 - 10 कितना है 4, इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी 4, ठीक। अब नाइट्रोजन वाले ग्रुप की बात करें, 15 - 10 कितना होता है 5, यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 8 - 5 दैट इज 3, ओके। अब यहाँ पे क्या है 16 है, तो यहाँ पे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगाना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगाने के लिए आप क्या करोगे 16 - 10, 16 - 10 कितना होता है 6, यानी इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई 6, ओके। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 8 - 6 दैट इज 2। इस तरीके से आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी पता लगा सकते हो। इसको अभी मैं वर्बली बता रही हूँ, मैं अभी आपको कैलकुलेशन पार्ट कुछ भी नहीं बता रही, लेकिन ये आपको करना है, मैं करवाऊंगी भी, लेकिन as soon as I finish the chapter explaining the chapter then only I will touch the all this part calculation and understanding। हाँ मैम, जैसे 3rd to 12 ग्रुप अपन नहीं पढ़ रहे हैं अपने कोर्स में, नहीं है इसलिए, तो मैम 3rd ग्रुप के जो होंगे और 13 ग्रुप के होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, क्योंकि सबके में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही है। नहीं, इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत वेरिएशन, इनकी बहुत सारी झोल है इनकी प्रॉपर्टीज में। क्यों झोल है भाई, क्योंकि इनकी एक खास बात बताऊं, क्योंकि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, इनका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कोई एक वैलेंसी ये शो नहीं करते। अगर आप ये ग्रुप 1 2 13 से लेके 18 में आपको पर्टिकुलर वैलेंसी बोल सकता है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसका 6 है, 5 है, ऐसा, लेकिन यहाँ पे 3 आर्गन तक ही
लेकिन Applicable अगर है। आप यहाँ से ग्रुप 3 से लेकर 12 तक एलिमेंट्स में जाओगे, इसमें इतने सारे एक्सेप्शन है, इसमें इतने सारे वेरिएशन है, इतना ट्रेंड है कि एक भी एलिमेंट जो है आपको पर्टिकुलर एक वैलेंसी शो करते हुए दिखेगा नहीं। जैसे कि मैंगनीज है ना, ये मैंगनीज की बात हो रही है, ये आपको दिख रहा है मैंगनीज 25 मैंगनीज, ये Yes. अकेला 7 वैलेंसी शो करता है। ये +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, सोचो 7 वैलेंसी शो करता है। मैम ठीक है। फेरस का भी ले सकते हैं ना, हाँ, फेरिक और फेरस भी +2 +3 है ना, और आपका कॉपर भी +1 +2, ठीक है। तो ये ऐसा है, तो ये इसी कारण से इसको धोखेबाज हैं ट्रांजिशन, लोग। हाँ धोखेबाज है, ओके। तो ट्रांजिशन एलिमेंट है और इनको अलग से स्टडी करना है। ये इसका एक पर्टिकुलर अलग ही चैप्टर है, अलग ही ट्रेंड है और प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इनको हम इसमें पढ़ नहीं यस सकते। मैम। अब बारी आती है किसकी, इस ग्रुप मैम में थोड़ा सा ये 30 - 10 वो तो सब आर्गन तक ही एप्लीकेबल है, क्या चीज, मतलब क्लोरीन तक। एक जो -10 वाला होता है ना, क्लोरीन तक 13 - 10। हाँ ग्रुप नंबर मॉडर्न टेबल में भी तो 30, ब्रोमीन भी कौन सा ग्रुप नंबर है, ब्रोमीन का जैसे 35 है, ब्रोमीन का क्या है 35 एटॉमिक नंबर है, लेकिन ब्रोमीन कौन से ग्रुप नंबर है। मैम 17। हाँ मैम मॉडर्न टेबल में भी तो फॉल्ट है, जैसे हाइड्रोजन को मींस मेटल्स में रखे हैं। मेटल्स में नहीं काउंट हुआ है उसका, देखो ब्लॉक क्या है, मतलब ग्रीन है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल है। यहाँ पे सबसे बड़ा यही बोल के गया है कि ये ग्रुप में इंक्लूडेड नहीं है। जब भी आप क्या बोलते हैं इसमें ग्रुप 1 का एलिमेंट है, लेकिन अल्कली मेटल्स के साथ ये जो है इसके साथ स्टडी नहीं किया जाता, इसका ये प्लेस किया गया, अलग से प्लेस किया गया मैम इसको ना। ये जो पीरियोडिक टेबल है ये 100% करेक्ट है, इससे अच्छा बन ही नहीं सकता है। अभी ऐसा तक से है, देखो, और इससे अच्छा साइंस ऐसी चीज है जो मैम आप हम लोग बना सकते हैं। अच्छा बना सकते हो। साइंटिस्ट भी तो तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स थे तुम लोग भी क्या पता आगे चल के मेरे को किसी को टीवी में नोबेल प्राइज देते हुए देखना पड़ेगा, ताली बजाऊंगी बैठ के ओके, यू कैन Yes, आल्सो ma'am. डू, यस मैम। okay, that will feel very good when our students will go to the Nobel Prize winner. That dream is very good. Okay, now come back to the modern periodic table. अब इसमें से आपको मुझे कुछ बताना था कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं। जैसे ये ग्रुप है, ये वाले मेटल्स है ना, ये रेड वाला लिथियम से लेके फ्रॉन्टियम, इनको क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल्स। इनको क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल्स। ये ग्रुप 1 के मेटल्स है, इनको अल्कली मेटल्स बोला जाता है। फिर यहाँ आगे बेरिलियम से लेके रेडियम तक, ये दिख रहा है सेकंड वाला कॉलम है ना, इसको क्या बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हर एक चीज का अपना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब दूसरा चीज है, इसकी वैलेंसी 2 रहती है, +2। हाँ +2। अब बातें मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के पर्टिकुलर ग्रुप का नाम बता रही हूँ ना। जैसे कि ग्रुप 15 है, इसको बोला जाता है पिंटोजेंस। ये देखो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल के ऊपर, पिंटोजेंस, ठीक है। इसको बोला जाता है 16 को बोला जाता है कैल्कोजेंस, 17 को बोला जाता है हेलोजेंस, 18 को बोला जाता है नोबल गैस। यस। और ग्रुप 12 के एलिमेंट्स क्या है, वोलाटाइल मेटल्स हैं। जैसे कि मरकुरी को, ये सब क्या है, मेटल्स जो है वोलाटाइल है, मतलब ये वेपर फॉर्म में आ सकते हैं। ओके, ये जो मेटल्स की खास बात है कि ये वेपर फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। कॉइनेज मेटल एक और है जो आपने पढ़ा हुआ लोअर क्लास में, कि जो पुराने जमाने में जो सिक्के बनाने के लिए यूज होते थे, जो मेटल जैसे कि सोना हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे के सारे क्या है, कॉइनेज मेटल, इसलिए इनका नाम पड़ गया कॉइनेज मेटल, ठीक है। तो ये कुछ खास नाम है, तो ये नहीं मैम ये लीस्ट लॉन्ग रहते हैं, हमको पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न करना पड़ेगा। पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं, पूरा पीरियोडिक टेबल तो नहीं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं आपको ये जो ग्रुप नंबर कैलकुलेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन, वैलेंसी कैलकुलेशन, इस चैप्टर में से बेटा थियोरेटिकल टाइप के क्वेश्चन तो 2 मैंने आपको बताया, मेनली जो पूछा जाता है मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से यही, इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज या फीचर, है ना। और अदर जो मेन क्वेश्चन जो इसमें आता है वो ऐसे नहीं आता कि इसका ये लिखो उसका वो लिखो। आपको कोई भी एलिमेंट, एक XYZ एक एलिमेंट है, इसका ग्रुप नंबर फाइंड करो, इसका ग्रुप वैलेंसी फाइंड करो, ऐसा। या फिर एक एलिमेंट अरेंज कर दिया गया, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस में अरेंज करो,
इसका मैं एप्लीकेशन करके बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे चैप्टर पहले आपको समझा दो, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। चैप्टर अच्छा इंटरेस्टिंग है मैम। हाँ मैम। अब कार्बन एंड कंपाउंड ज्यादा इंटरेस्टिंग था। हाँ ठीक है, करेंगे, अभी तो रिवाइज मेनली वही करना है मुझे पहले। अल्कली मेटल्स में बात कर ले तो मैंने अभी आपको बताया कि अल्कली मेटल्स क्या है, ठीक है। अब ग्रुप नंबर बताया था ना, ग्रुप नंबर 1 के मेटल्स को अल्कली मेटल्स बोला जाता है और इनको अल्कलाइन। हाँ एक और चीज, इनको अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप अल्कली किसको बोलते हो, सॉल्युबल बेस को बोलते हो ना, सॉल्युबल बेसिस को हम क्या बोलते हैं, अल्कली। तो ग्रुप 1 और 2 के दोनों के ही मेटल्स जो होते हैं वो सॉल्युबल बेसिस बनाते हैं, तो इसलिए एक को बोला गया अल्कली मेटल्स और दूसरे को अल्कलाइन इसलिए बोला गया कि इसके जो ये जो मेटल है ये अर्थ क्रस्ट में ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। इनका जो अर्थ क्रस्ट में जो ऑक्साइड वगैरह है ये ज्यादा मिलता है किसका, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, इसलिए इसको बोला गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अदरवाइज दोनों में अल्कली वर्ड आने का कारण ही यही है कि दोनों क्या बना रहे हैं, सॉल्युबल बेस बना रहे हैं, ठीक है। बेस बना रहे हैं। अब यस मैम। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेनली 3 कैटेगरीज है। 3 कैटेगरीज क्या है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ये जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ग्रुप 1 और 2 मेटल्स है। 13 से लेकर 18 तक मेनली मेजॉरिटी की बात करी, 100% नहीं, मेजॉरिटी जो है वो नॉन मेटल्स है। फिर उसमें क्या है, मेटलॉइड्स भी हैं और कुछ मेटल्स भी हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे ये दिख रहा है, ये ब्रेक ये सीढ़ी जैसी दिख रही है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये आपको दिख रहा है, ये सीढ़ी जैसा एल शेप में बना हुआ है, ये सारे के सारे मेटल है लेकिन पुअर मेटल है, ठीक है। और ये जो ग्रेइश पोर्शन दिख रहा है बीच में, ये क्या है, मेटलॉइड्स, ठीक है। और ये जो कार्बन फॉस्फोरस और ये जो है नॉन मेटल्स हैं लेकिन लेस रिएक्टिव है, नॉन मेटल्स हैं लेकिन कैसे हैं, लेस रिएक्टिव। और ये जो और ये जो क्रीमिश कलर का है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स, ठीक है। और ये तो हो गया नोबल गैस। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को देख के हम बता सकते हैं कि ये अच्छा मेटल है, मतलब लेस रिएक्टिव मेटल है कि मोर रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है, ओके। ये हो गया। मैम हाइड्रोजन को मेटलॉइड होना था? नहीं, मेटलॉइड नहीं है वो, नॉन मेटल है वो, बेसिकली नॉन मेटल है, लेकिन उसको नॉन मेटल की कैटेगरी में भी नहीं गिना जाता, उसको मेटल्स की कैटेगरी में नहीं, इसलिए उसको किसी भी ग्रुप में नहीं रखा गया, उसको किसी के भी ग्रुप में नहीं, क्योंकि वो मेटल की जैसे इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है और नॉन मेटल की जैसे इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है, इसलिए उन्होंने किसी के साथ भी उसको प्लेस नहीं किया, उसको अलग से एक ग्रुप में, मतलब एक जगह दे दी, तू अकेले रह करके उसको ग्रुप 1 के ऊपर डाल दिया। और ग्रुप 1 में के ऊपर रखने का लॉजिक ये है कि उन लोग की वैलेंसी 1 थी, इसी लॉजिक के कारण उसको उस कॉर्नर में रखा गया, ठीक है। अब हैलोजेंस है, हैलोजेंस के बारे में बताया। हाँ, इसको हैलोजन नाम क्यों दिया गया, हैलोजन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सारे के सारे क्या बना रहे, सॉल्ट। देखो यहाँ पे लिखा, मैंने हाईलाइट भी किया, ग्रीक वर्ड एल मींस सॉल्ट एंड जेन मींस प्रोड्यूसर। तो मेनली ये क्या है, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप है, जैसे कि आपका NaCl हो गया, NaCl क्लोरीन लग रहा है ना, सोडियम फ्लोराइड, वहां पे भी क्या है NaBr। तो ये सब क्या है, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग ये जो है क्या आपका ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोला गया, एक मिनट, हाँ मैं जी, यस योर आंसर इज करेक्ट बेटा। मेटलॉइड्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज शो करें वो क्या है, मेटलॉइड्स, ओके। तो ये हुआ हैलोजेंस। हैलोजेंस के बाद नोबल गैस होता है, नोबल गैस क्या हो जाता है, पूरे के पूरे क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, उसको आपकी बैलेंसी क्या रहती है, 8 रहती है, सिर्फ एक हीलियम को छोड़ के जिसका डूप है, छोटा सा एलिमेंट है, वो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर सकता, इसलिए उसको एक्सेप्शन दिया गया कि अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, क्लियर है। अब इसके बाद, अब मैंने ये टेबल में शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये टेबल अगर याद रख सको तो याद रख लेना। तो पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है, अब उसका ट्रेंड देखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका क्या रहता है, अब इधर देखो, मैं अब वापस इसको पीरियोडिक टेबल से समझाती हूँ। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ देखो, हाइड्रोजन से जा रहे हो हीलियम है ना, हाइड्रोजन से हीलियम है, आप कहाँ से जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ठीक है नहीं, लेफ्ट टू राइट। तो आप जैसे ही लेफ्ट टू राइट जा रहे हो,
हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के वैलेंस शेल में कितना है? 2। और यहाँ पे क्या है? लिथियम के वैलेंस शेल में देखो, यहाँ से देखो, यहाँ करेक्ट समझ में आएगा। लिथियम के वैलेंस शेल में क्या है? 1। बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, है कि नहीं? बोरॉन के वैलेंस शेल में कितना है? 3। कार्बन की कितना है? 4। नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6 और फ्लोरीन का 7। यानी कि हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जा रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? लेकिन जैसे ही अब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, लिथियम ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, सबके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम, whereas from left to right in the periodic table along the period the valence electron increases by 1. ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, in the period valence electron increases from left to right, whereas down the group it remains constant. ये किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें ट्रेंड में? तो मैम जैसे हाँ, मैम जैसे कार्बन वाला जो ग्रुप है, 6th ग्रुप, और जो 4th मतलब जितने भी उसमें हैं जैसे सिलिकॉन, हाँ, जर्मेनियम, सब कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे। यस, वो उस ग्रुप की खासियत है, वो उस ग्रुप का स्पेशलिटी है। कोवेलेंट बॉन्ड सब बनाते हैं, ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन नहीं बनाएगा, नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन इस ग्रुप की खासियत ये है कि इन लोग मतलब इसमें कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग शो कर सकता है, सल्फर नहीं। अब अगर कोवेलेंट की बात करो तो सारे के सारे नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन, जर्मेनियम तो मेटल्स हैं। जर्मेनियम मेटल है, शो कर सकता है। कैसा है? हाईली रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में रखा है क्या उसको? नहीं ना? नो मैम। वो कर सकता है। यस मैम। ओके, बैलेंस। अब आप बोलोगे कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं? मेटल्स जो होते हैं ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। आपको अगर याद हो तो इसमें मैं ये कोवैलेंट बॉन्डिंग का एक टाइप है जिसमें एक एलिमेंट देगा, 2 शेयर करते हैं। तो मेटल की एक और खासियत रहती है कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने एक इलेक्ट्रॉन को देते हैं, तो वो दूसरा एलिमेंट भी शेयर करेगा और वो भी। जैसे अभी सपोज ये मेरे पास ये पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव मेरा है, मैं आपको अभी यूज करने के लिए दे रही हूँ। तो ये क्या है, मेरा पेन ड्राइव आप भी यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रही हूँ। ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। अब अगर और आप अगर मेरे को अपना पेन दे रहे हो और मैं आपको अपना पेन ड्राइव दे रही हूँ, तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ? आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग हो रही है ना? कोवैलेंट में शेयरिंग हो रही। मैं आपका पेन ड्राइव, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको पेन ड्राइव दे दिया, आपने कंप्लीटली रख लिया हमेशा के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है। अब बारी आती है किसकी? वैलेंस शेल की। वैलेंस शेल क्या होता है? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे वो शेल क्या कहलाता है? वैलेंस शेल। अब डाउन द ग्रुप जो रहता है, वैलेंस शेल जो रहेगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप आपका जो वैलेंस शेल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। ओके, द लास्ट शेल इन विच डाउन द ग्रुप, सॉरी डाउन द ग्रुप नॉट, अलोंग द पीरियड, अभी दिखा रही हूँ, अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड की बात कर, जैसे अब हाइड्रोजन टू हीलियम है, आप एक ही पीरियड के एलिमेंट है। मैंने अभी जस्ट बताया था कि पीरियड नंबर क्या इन्फॉर्मेशन देता है वैलेंस शेल के बारे में, यानी कि इनमें वैलेंस शेल तो सेम है। अगर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सारे के सारे कौन से ग्रुप पीरियड के एलिमेंट है? सेकंड पीरियड के, यानी सब में वैलेंस शेल सेम आएगा। दैट मींस हाँ, क्या व्हाट हैपन? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। ओके, सो अलोंग द पीरियड, कंटिन्यू। अब अलोंग द पीरियड जाते हैं तो भाई यहाँ पे क्या सेकंड पीरियड है, तो सब में सेकंड वैलेंस शेल कितना है? 2 है, यानी वैलेंस शेल सेम था, यानी कि अलोंग द पीरियड द वैलेंस शेल रिमेन्स द सेम। अब डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। अब डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है? ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड। अब पीरियड नंबर चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है वैलेंस शेल भी तो चेंज होगा, है कि नहीं? तो डाउन द ग्रुप वैलेंस शेल चेंजेस, whereas along the period the valence shell remains same. Is it clear? Down the group valence shell will change, whereas along the period valence shell will remain constant. Clear हुआ इतना? अब बारी आती है किसकी? वैलेंस की।
वैलेंसी की। अभी मैंने आपको बताया था कि वैलेंसी में क्या, अगर ग्रुप नंबर सेम होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, तो वैलेंसी भी तो सेम हो जाएगी, है कि नहीं। वैलेंसी क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के द्वारा एक्सचेंज किया गया